لوک ڈاؤن کاروبار کا دشمن بن گیا۔ صنعتی شہر کے تاجروں نے آواز بلند کر دی۔ پابندیوں سے نہ صرف کاروبار بلکہ لاکھوں خاندانوں کا روزگار بھی شدید متاثر۔ تاجر برادری کا حکومت سے لاک ڈاؤن مکمل ختم کرنے کا دو ٹوک مطالبہ۔ صدر سپریم انجمن تاجران حاجی اسلم بھلی کا کہنا ہے حکومت فوری طور پر کاروبار دوست فیصلہ کرے اور مارکیٹس کو مکمل ریلیف دے۔ لاک ڈاؤن سے کاروباری سرگرمیاں طویل عرصے سے متاثر، ہزاروں مزدوروں کے چولہے ٹھنڈے پڑنے لگے۔ انجمن تاجران حاجی اسلم بلی نے کہا حکومت زمینی حقائق کو مد نظر رکھتے ہوئے فوری طور پر تمام پابندیاں ختم کرے تاکہ بازار مکمل طور پر بحال ہوں۔ بات یہ ہے جی، یہ غیر معمولی حالات کی وجہ سے لاک ڈاؤن لگایا گیا تھا۔ ادھر جنگ لگ گئی، ادھر پیٹرول نہیں ہے، ادھر انرجی کرائسس آ گئے ہیں، اس کی وجہ سے انرجی بچاؤ مہم کے تحت یہ لاک ڈاؤن کیا گیا۔ اب جب حالات سارے کے سارے پرسکون ہو گئے ہیں، 15,000 ارب روپے کا FBR نے جو بجٹ کا ٹارگٹ دیا ہے، کہاں سے آئیں گے وہ پیسے؟ خو کا عالم ہے، کرائے پورے نہیں ہو رہے، ایک ایک دکان پہ 6 ملازم ہے۔ مارکیٹوں کے اوقات کار پر تاجروں نے کہا جب دیگر شعبوں کو مرحلہ وار ریلیف دیا جا رہا ہے تو مارکیٹوں اور بازاروں کو بھی بلا امتیاز سہولت فراہم کی جائے۔ حکومت ٹیکس اہداف حاصل کرنا چاہتی ہے تو کاروبار کا پہیہ پوری رفتار سے چلانا ہوگا۔ بازار آباد ہوں گے تو خرید و فروخت بڑھے گی اور ریونیو زیادہ سے زیادہ اکٹھا ہوگا۔ 65% یہاں پہ کاروبار ہے ٹیکسٹائل کا، اور پورے ملک کو ترسیل ہوتی تھی۔ آج میرے بازار سنسان پڑے ہیں، یہاں پہ کوئی نہیں ہے، تو ان کا ٹارگٹ کیسے پورا ہوگا؟ اس ملک کی معیشت کیسے چلے گی؟ ریونیو کہاں سے آئے گا؟ خدا را اس کو فوری طور پر ختم کریں۔ جہاں باقی تمام سیکٹر کو ریلیف دی ہے، میرے تاجر کو بھی ریلیف دیں اور تاکہ وہ آسانی سے اپنا کاروبار کر سکیں۔ تاجر برادری نے کہا لاک ڈاؤن جن وجوہات پر لگایا تھا اب تمام حالات بہتر ہو چکے ہیں، اس لیے مارکیٹ کے ٹائم ٹیبل پر نظر ثانی کی جائے۔ کیمرہ مین عثمان تاج کے ساتھ فضیل احمد، سٹی 41 فیصل آباد۔ تحفے کا لین دین اب بغیر ٹیکس کے ہوگا۔ FBR نے جائیداد منتقلی پر بڑا ریلیف دے دیا۔ قریبی رشتہ داروں کو تحفے میں منتقل کی جانے والی جائیداد پر ایڈوانس ود ہولڈنگ ٹیکس لاگو نہیں ہوگا۔ جائیداد دینے والا اور وصول کرنے والا دونوں ٹیکس سے مستثنی ہوں گے۔ شہریوں کے لیے اچھی خبر، تحفہ دی جانے والی جائیداد کی منتقلی پر FBR ود ہولڈنگ ٹیکس لاگو نہیں ہوگا۔ غیر منقولہ جائیداد گفٹ ڈیڈ کے ذریعے قریبی رشتہ داروں کو تحفہ دی جا سکتی ہے۔ سیکشن 236C 236 کے تحت ان جائیدادوں پر FBR ایڈوانس ٹیکس وصول نہیں کرے گا۔ سیکشن 236W کے تحت بھی جائیدادوں کے انتقال پر ایڈوانس ود ہولڈنگ ٹیکس نہیں لگے گا۔ جائیداد گفٹ کرنے والا اور بینیفیشری دونوں ہی ایڈوانس ود ہولڈنگ ٹیکس سے مستثنی ہوں گے۔ عمومی کیسز میں جائیدادوں کی خرید و فروخت پر 11% تک FBR ایڈوانس ود ہولڈنگ ٹیکس لاگو ہے۔ کیمرہ مین عرفان ملک کے ساتھ عمیر اجمل، سٹی 41 فیصل آباد۔ فیصل آباد میں LPG گیس سرکاری قیمت پر ملنا عوام کے لیے امتحان بن گیا۔ شہریوں سے دوگنا قیمتیں وصول کی جانے لگی۔ LPG کی سرکاری قیمت 309 روپے جبکہ 600 روپے تک فروخت ہونے لگی۔ جماعت اسلامی ٹریڈرز ونگ کی جانب سے سرکاری قیمتوں پر عمل درآمد کا مطالبہ۔ فیصل آباد میں LPG گیس سرکاری قیمت پر ملنا عوام کے لیے امتحان بن گیا۔ شہریوں سے دوگنا قیمتیں وصول کی جانے لگی۔ LPG گیس کی سرکاری قیمت 309 روپے جبکہ 600 روپے تک فروخت ہونے لگی۔ جماعت اسلامی ونگ کی جانب سے سرکاری قیمتوں پر عمل درآمد کا مطالبہ۔ صدر جماعت اسلامی ٹریڈرز ونگ رانا سکندر اعظم کا کہنا تھا عوام کو ہاتھوں سے لوٹا جا رہا ہے، دکانداروں اور پرائیویٹ پلانٹ مالکان کو کوئی پوچھنے والا نہیں، منمانی قیمتیں وصول کی جا رہی ہیں۔ مزید بولے متعلقہ انتظامیہ سے مطالبہ ہے کہ سرکاری قیمتوں پر عمل درآمد کرا جائے۔ پوچھنے والا ہی نہیں ہے، کوئی ایسا نہیں ہے کہ عوام کو دونوں ہاتھوں سے مکمل لوٹا جا رہا ہے اور کوئی ان کو بچانے والا نہیں ہے۔ ہماری درخواست یہ ہے کہ آپ یہ 25 کروڑ لوگوں کا کیا قصور ہے؟ آپ نے مافیا کے حوالے کر دیا اس ملک کو، جس کا جو دل چاہے من چاہے ریٹ وصول کرتے ہیں۔ رانا سکندر اعظم خان کی جانب سے حکومت کو تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے انتظامیہ کو LPG گیس سرکاری قیمت میسر کرنے کا مطالبہ کر دیا۔ کیمرہ مین اس کے ساتھ عمران جا، سٹی 41 فیصل آباد۔ شنیوٹ میں شوگر ملز نے گنے کے کاشتکاروں کو تاحال کروڑوں روپے کی ادائیگیاں نہ کی۔ شنیوٹ کے کاشتکار سڑکوں پر نکل آئے، مظاہرین کے ساڈا حق ایتھے رکھ کے نعرے۔ صوبائی امیر جماعت اسلامی پنجاب جاوید قصوری نے احتجاج میں خصوصی شرکت کی۔ جاوید قصوری نے احتجاج کی قیادت کی۔ مظاہرین کے ساڈا حق ایتھے رکھ کے فرق شگاف نعرے۔ شوگر ملز کے کاشتکاروں کو کروڑوں روپے کی ادائیگی نہیں کی۔ کسان کے لیے ملک میں سستی بجلی ہے، نہ ہی کھاد اور نہ ہی بیج۔ کسانوں کے گھروں کے چولہے ٹھنڈے پڑ گئے۔ جاوید قصوری نے مزید کہا شوگر ملز کاشتکاروں کو فوری گنے کی ادائیگی کریں اور ورنہ کسان احتجاج کا دائرہ کار وسیع کریں گے۔ سستی کھاد مل رہی ہیں، نہ سستا بیج مل رہا ہے،
ज़रूरी अद्वियात भी जाली और महंगी मिल रही हैं। और ये किस कदर जुल्म है कि किसान गन्ना तैयार करके इन शुगर मिल मालिकान को देता है और वो 4-4 महीने हो गए हैं वो शुगर मिल मालिकान किसानों को उनकी कीमत देने के लिए तैयार नहीं है। जमात इस्लामी इसकी शदीद मजम्मत करती है और हम वाज़े तौर पे कहना चाहते हैं कि किसानों को, गन्ने के काश्तकारों को फौरी तौर पे उनकी अदायगियां शुरू की जाएं। अगर अदायगियां नहीं की जाएंगी, वो रमजान शुगर मिल हो या कोई और शुगर मिल हो, हम इस बात को वादे करना चाहते हैं कि किसानों के हक के लिए जमात इस्लामी किसान बोर्ड हर कदम उठाएंगे। और हम इस मौके के ऊपर वादे तौर पे कह रहे हैं कि अगर किसानों को हक ना मिला तो फिर हम रास्ते करेंगे, हम एहतजाज करेंगे, हम धरना देंगे। अब आपको बताएं कि व्यापार डिवीजन में सब्जियों से फलों की कीमतों में उतार चढ़ाव। अदरक, प्याज, टमाटर समेत मुतादिद सब्जियों और फलों की कीमत में इजाफा। आलू बुखारे ने खरीदारों को बुखार चढ़ा दिया। 500 रुपये किलो तक जा पहुंचा। झंग, टोबा और चिन्योट में शहरियों की जानिब से ज़ायद नर्ख वसूल करने की शिकायत। फैसलाबाद में सब्जियों और सब्ज मसाला जात की कीमतों में हफ्तावार मवाजना। आलू 8 रुपए कम होकर 28, मार्केट में 100 रुपए किलो मुयस्सर। अदरक 10 रुपए बढ़कर 300, मार्केट में 40 रुपए किलो तक फरोख्त। अरबी 10 रुपए सस्ती होकर 105, मार्केट में 150 रुपए दस्तयाब। बैंगन 65 रुपए किलो पर बरकरार, मार्केट में 100 रुपए किलो तक मुयस्सर। प्याज 5 रुपए बढ़कर 80 रुपए, मार्केट में 100 रुपए किलो बिकने लगा। फूल गोभी 15 रुपए कम होकर 150, मार्केट में 180 रुपए किलो मुयस्सर। टमाटर 45 रुपए बढ़कर 165, मार्केट में 180 रुपए किलो तक फरोख्त। टिंडे 15 रुपए बढ़कर 80 रुपए, मार्केट में 100 रुपए किलो मुयस्सर। सब्ज मिर्च 10 रुपए महंगी होकर 105, 180 रुपए किलो हो गई। शिमला मिर्च 15 रुपए बढ़कर 150, मार्केट में 220 रुपए दस्तयाब। करेला 5 रुपए कम होकर 70, मार्केट में 120 रुपए किलो बेचा जाने लगा। लहसुन चाइना 320 रुपए बरकरार, मार्केट में 40 रुपए किलो दस्तयाब। मटर 175 रुपए किलो से बढ़कर 180, मार्केट में 250 रुपए किलो मुयस्सर। जंग में 7 रोज के दौरान फलों की कीमतों में रद्दोबदल। आलू 90 रुपए किलो, मार्केट में 120 रुपए किलो फरोख्त। अदरक 95, मार्केट में 350 रुपए किलो तक दस्तयाब। बैंगन 20 रुपए 90, मार्केट में 120 रुपए मुयस्सर। बंद गोभी 60 रुपए, प्याज 70, मार्केट में 90 रुपए दस्तयाब। भिंडी 20 रुपए इजाफे से 110, मार्केट में 140 रुपए मुयस्सर। टमाटर 170 रुपए, मार्केट में 200 रुपए तक बिकने लगा। टिंडे 50 रुपए कमी के बाद 80 रुपए, मार्केट में 100 रुपए। करेले फार्मी 100 रुपए, मार्केट में नरख 130 रुपए किलो। सेब काला किलो 470, गोल्डन 260, मार्केट में 40 रुपए किलो। केला अव्वल 200 रुपए, मार्केट में 240 रुपए। आड़ू स्पेशल 300 रुपए किलो। खुबानी सफेद 220, मार्केट में 300 रुपए। फालसा 500 रुपए फरोख्त। खरबूजा 100 रुपए। आम सिंदरी अव्वल 210, मार्केट में 250 रुपए किलो। हारा 430, मार्केट में 500 रुपए। गरमा 150 रुपए किलो दस्तयाब। आम मालदा 150 रुपए किलो। तरबूज 25, मार्केट में 35 रुपए किलो फरोख्त। एक हफ्ते में सब्जियों और फलों की कीमतों में उतार चढ़ाव। प्याज 20 रुपए इजाफे के बाद 90 रुपए मुकर्रर। आलू 10 रुपए इजाफे के बाद 30 रुपए फरोख्त। टमाटर 80 रुपए इजाफे के बाद 150 रुपए मुकर्रर। लहसुन 30 रुपए कमी के बाद 330 रुपए दस्तयाब। अदरक 10 रुपए इजाफे के बाद 300 रुपए मुकर्रर। लीमू 70 रुपए के बाद 150 रुपए दस्तयाब। सब्ज मिर्च 30 इजाफे के बाद 100 रुपए मुकर्रर। फूल गोभी 70 रुपए इजाफे के बाद 170 फरोख्त। नारियल 400 रुपए मुकर्रर, मार्केट में 430 रुपए फरोख्त। सेब काला 20 रुपए इजाफे के बाद 440 रुपए फी किलो मुकर्रर। केला 10 रुपए इजाफे के बाद 200 रुपए फी दर्जन मुकर्रर। आम दसई 230 रुपए। आम लंगड़ा 150 रुपए फी किलो मुकर्रर। चिन्योट आलू 30, प्याज 10, अदरक 5, सब्ज मिर्च 15, टमाटर 35 रुपए महंगे। गुज़श्ता हफ्ते के दौरान आलू 30, मार्केट में 50 रुपए फरोख्त। प्याज 10 रुपए बढ़ा 85, जबकि मार्केट में 100 रुपए में फरोख्त हो रहा। टमाटर 35 रुपए इजाफे के साथ 160, मार्केट में 300 रुपए किलो। लहसुन चाइना 330 पर बरकरार, जबकि देसी 125 और हरनाई 240 रुपए किलो है। अदरक थाईलैंड 5 रुपए इजाफे के साथ 300 रुपए फी किलो पर बरकरार। सब्ज मिर्च 15 रुपए फी किलो इजाफे के साथ 110 रुपए किलो मुयस्सर। बैंगन 5 रुपए बढ़कर 75। फूल गोभी 20 रुपए कमी के साथ 150 रुपए किलो। भिंडी 15 रुपए कमी के साथ 80। घिया कद्दू 20 रुपए सस्ता 60 रुपए किलो। लीमो देसी 140 रुपए, मार्केट में 300 रुपए फी किलो फरोख्त हो रहा। शिमला मिर्च 10 रुपए इजाफे के साथ 200, मार्केट में 250 रुपए मुयस्सर। टिंडा देसी 80 पर बरकरार। अरबी 10 रुपए कमी के साथ 110 रुपए किलो है। और अब आपको बताएं कि डेंटिस्ट्री के शोबे में अहम तब्दीली। बीडीएस प्रोग्राम की मुद्दत 4 से बढ़ाकर 5 साल कर दी गई। 2025 से 26 के तालीमी सेशन से पंजाब के तमाम डेंटल कॉलेजेस में
नया 5 साला इंटीग्रेटेड BDS निसाब नाफिज होगा। 4 साला BDS ग्रेजुएट्स के लिए ब्रिजिंग प्रोग्राम की तजवीज़ यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। शोबे में अहम तब्दीली, BDS प्रोग्राम की मुद्दत 4 से बढ़ाकर 5 साल कर दी गई। 2025 से 26 के तालीमी सेशन से पंजाब के तमाम डेंटल कॉलेजेस में नया 5 साला इंटीग्रेटेड BDS निसाब नाफिज होगा। नए निसाब में क्लिनिकल ट्रेनिंग, सिमुलेशन लैब्स और तहकीक पर तवज्जो। 5 साल BDS से आलमी सतह पर डिग्री की कबूलियत बेहतर होगी। 4 साला BDS ग्रेजुएट्स के लिए ब्रिजिंग प्रोग्राम की तजवीज़ यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। BDS प्रोग्राम अब 4 नहीं 5 साल में मुकम्मल होगा। यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। PMNDC के मयार के मुताबिक नया निसाब नाफिज किया गया। प्रोफेसर डॉक्टर SN वहीद राठौर का कहना है, ब्रिजिंग प्रोग्राम से 5 साल मुसावी डिग्री हासिल की जा सकेगी। पाकिस्तानी डेंटिस्ट के लिए बैरून मुल्क मुलाजमत के मौके बढ़ेंगे। DCUHS ने मजीद कहा, आला तालीम और बैनुल-अक़वामी लाइसेंसिंग इम्तिहानात में भी सहूलत मिलेगी। यूरोपी तर्ज का पंजाब का न्यू हेल्थ कल्चर इन्फेक्शन भगाने लगा। सरकारी अस्पतालों में जामे सफाई की जाने लगी। डीप क्लीनिंग की डिजिटल मॉनिटरिंग रोजाना की बुनियाद पर जारी। वज़ीर आला पंजाब को रिपोर्ट पेश। वज़ीर आला मरीम नवाज कहती हैं, तमाम शहरियों बिलखसूस खातीन और बच्चों की सेहत की फिक्र है। पंजाब का न्यू हेल्थ कल्चर इन्फेक्शन भगाने लगा। हर सरकारी अस्पताल में रोजाना जामे सफाई की जाने लगी। रोजाना डीप क्लीनिंग की डिजिटल मॉनिटरिंग जारी। वज़ीर आला मरीम नवाज को डीप क्लीनिंग की रिपोर्ट पेश कर दी गई। अस्पताल के दाखिली रास्तों, राहदारियों और तमाम वार्ड्स की भरपूर सफाई होने लगी। वेटिंग एरिया खसूसी तवज्जो है। मखसूस लगे। वज़ीर आला मरीम नवाज कहती हैं, तमाम शहरियों बिलखसूस खातीन और बच्चों की सेहत की फिक्र है। डीप क्लिनिक से मुतादिद अमराज के फैलाव में कमी होगी। आपको बताएं कि फैसलाबाद की दूसरी बड़ी सब्जी मंडी गुलाम मोहम्मदाबाद पीने के पानी से महरूम है। मंडी में खरीदो फरोख्त के लिए आए शहरी और आड़ती पानी को तरसने लगे। अरसा दराज गुजर जाने के बावजूद पानी का मुनासिब इंतजाम न किया जा सका। सदर अंजुमन ताजरान शाहीन ग्रुप राना आमिर जावेद कहते हैं, हजारों लोग रोजाना खरीदो फरोख्त के लिए आते हैं मगर पीने के पानी का इंतजाम नहीं। मंडी में खरीदो फरोख्त के लिए आए शहरी और आड़ती पानी को तरसने लगे। सदर अंजुमन ताजरान शाहीन ग्रुप राना आमिर जावेद कहते हैं, हजारों लोग रोजाना खरीदो फरोख्त के लिए मंडी आते हैं मगर पीने के लिए पानी का इंतजाम नहीं है। मजीद बोले, मंडी में फिल्टर का पानी मुयसर होना तो दूर, नहरी पानी तक मौजूद नहीं। उनका मजीद कहना था, मुतल्लिका इंतजामिया से मुतालबा है कि मंडी में पानी का मुनासिब इंतजाम किया जाए। झग इंतजामिया की अदम तवज्जो, शहर में मौजूद मुख्तलिफ वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट गैर फाल। जिला कचहरी चौक में लगा वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट अरसा दराज से इंतजामिया की तवज्जो का मुंतज़िर। फिल्ट्रेशन प्लांट गैर फाल होने से शहरी मुफ्त पानी की सहूलत से महरूम। मज़ीद तफसीलात वसीम अजीज की रिपोर्ट में। जिला कचहरी चौक में लगा वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट अरसा दराज से गैर फाल होने पर इलाका मकीन परेशानी का शिकार। कहा, वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट तवील अरसे से गैर फाल है, जिससे पीने के लिए साफ पानी खरीदने पर मजबूर हैं। इलाका मकीनों का मजीद कहना था कि वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट की मरम्मत के लिए जिले इंतजामिया की जानिब से कोई इकदामात नहीं उठाए जाते। आला हुकाम सूरत-ए-हाल पर नोटिस लेकर मसला हल कराएं। प्लांट काफी अर्से से खराब पड़ा है और गर्मी बहुत है, बहुत शिद्दत की गर्मी, जिसकी वजह से प्लेंटर हमारी डीपीओ साहब से दरख्वास्त है ये जल्द से जल्द बहाल कराया जाए। शहरियों ने डिप्टी कमिश्नर से मुतालबा किया है कि वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट को जल्द अज जल्द फाल कराया जाए ताकि शहरी पीने के साफ पानी से मुस्तफीद हो सके। कैमरामैन मोहम्मद अरबाब के साथ वसीम अजीज, सिटी 41 जंग। और दूसरी जानिब टोबा टेक्सिंग के इलाके गौशाला में अरसा दराज से बंद फिल्ट्रेशन प्लांट दोबारा फाल कर दिया गया। इलाका मकीनों के पीने के साफ पानी की फ्राहमी बहाल हो गई। सिंह के इलाका गौशाला में अरसा दराज से बंद वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट फाल कर दिया गया। इलाका मकीनों को दोबारा पीने के लिए साफ पानी की फराहमी शुरू हो गई। वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट फाल होने पर अहले इलाका ने खुशी का इजहार करते हुए इकदाम को खुश आइंद करार दिया। बोले, वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट की बंदिश के बाद शदीद मुश्किलात का सामना था। दूर दराज के इलाकों से पानी लाने पर मजबूर थे। ਪਹਿਲੋਂ ਬੰਦ ਹੀ ਸੀਗਾ, ਫਿਰ ਨਾਲ ਸਿਟੀ 41 ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਤੇ ਐਕਸ਼ਨ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਚੱਲ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਵਾ। ਅੱਲਾ ਖੈਰ ਕਰੇ ਤਾਂ ਬਸ ਪਾਣੀ ਦਾ ਮਸਲਾ ਵਾ ਉਹ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਸਿਟੀ 41 ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਸਰ। इलाका मकीनों का कहना था, साफ पानी हर शहरी का बुनियादी हक है। उम्मीद है मुतल्लिका अदारे प्लांट की मुस्तकिल बुनियादों पर देखभाल को यकीनी बनाएंगे ताकि दोबारा ऐसे बंदिश का सामना न करना पड़े। फैसलाबाद के लिए बड़ी डेवलपमेंट, शहर में नया ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट बनाने का मंसूबा। कंसल्टेंट की जानिब से मास्टर प्लानिंग फिजिबिलिटी स्टडी पर काम जारी। एयरपोर्ट अथॉरिटी ने 2000 एकड़ जगह के लिए कमिश्नर को दरखास्त दे दी। चकचुमरा समेत तहसील सदर के मुख्तलिफ इलाकों की जियो टैगिंग और मैपिंग होगी। फैसलाबाद ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट का मंसूबा
कंसल्टेंट की जानिब से मास्टर प्लानिंग फिजिबिलिटी स्टडी पर काम किया जा रहा है। एयरपोर्ट अथॉरिटी को ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट के लिए 2000 एकड़ जगह दरकार। फैसलाबाद एयरपोर्ट अथॉरिटी ने कमिश्नर फैसलाबाद से 2000 एकड़ जगह मांग ली। नए एयरपोर्ट के लिए चकजुमरा समेत तहसील सदर के मुख्तलिफ इलाकों में जियो टैगिंग मैपिंग कराने का फैसला। फ्लाई जोन्स को मद्देनजर रखते हुए सिफारिश करदा मुख्तलिफ जगहों के सैंपल्स अर्थ कलेक्शन की जाएगी। कैमरामैन अशफाक बुखारी के साथ इमरान असलम, सिटी 41 फैसलाबाद। फैसलाबाद में मेट्रो बस रूट्स पर तामीराती काम जारी। झंग रोड, जड़ावाला रोड ब्रिज खत्म करने का फैसला, जबकि ज़रिए यूनिवर्सिटी नरवाला रोड और नेशनल टेक्सटाइल यूनिवर्सिटी में नए ब्रिज बनाए जाएंगे। म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन 2 करोड़ की लागत से ब्रिज तामीर करेगा। फैसलाबाद में मेट्रो बस मंसूबा 6 के रूट्स पर तामीराती काम जारी। मेट्रो बस रूट जंग रोड पर, जड़ावाला रोड पर पेडेस्ट्रियन ब्रिज खत्म करने का फैसला किया गया है। ज़रिए यूनिवर्सिटी नरवाला रोड, नेशनल टेक्सटाइल यूनिवर्सिटी में पेडेस्ट्रियन ब्रिज तामीर होंगे। म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन 2 करोड़ की लागत से पेडेस्ट्रियन ब्रिज तामीर करेगा। टेंडर तलब कर लिए गए। कैमरामैन अशफाक बुखारी के साथ इमरान असलम, सिटी 41 फैसलाबाद।